যাবে না তোমরা? কেমন লাগলো আপনাদের? এটা আই থিঙ্ক 3 থেকে 4 ঘন্টার পারফরমেন্স। সুদীপা ঘরে ঘরে ও আমি কোনোদিনও স্কোপ হয়নি, ইনফ্যাক্ট একটা কথা বলছি, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু ময়ূরুল্লাহ অ্যান্ড টু অল টিম আমাদের হলটাকে একটু সময় বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, রাজীব দা অ্যান্ড দেবুদাকে। ময়ূরুল্লাহ কোথায় যদি সামনে থাকেন, ভেরি ভেরি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এতগুলো অ্যাওয়ার্ড আর এত রকম प्रोग्राम, বুঝতেই পারছেন मैंने पहले ही बोला हिंदी बांग्ला इंग्लिश मिला के मुझे बोलना चाहिए, बट मैं रियली स्पेल बाउंड बिकॉज मैंने उनको जस्ट 3 घंटे 4 घंटे का टाइम दिया था और थोड़ा कंफ्यूजन था। नेताजी ब्रेवरी अवार्ड है, किस टाइप की प्रोग्राम करना चाहिए, किस टाइप की, क्योंकि डांस पे क्रिटिसिज्म बहुत हो जाता है और आजकल सोशल मीडिया एकदम अटैक रेडी, कुछ भी हुआ अटैक। तो उस हिसाब से रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं सनी जी को बोलूँगी जी एकदम सब बच्चे हैं, अपकमिंग टैलेंट है, एंड मैंने कभी आइडेंटिटी नहीं बताई, शी इज माई कजिन, तो রক্ততে আছে আমাদের মিউজিক। তো 3 ঘন্টাতে সব করেছে। সুদীপাকে জন্য একটা থ্যাংক ইউ হোক এবং ওদের ছোট্ট উপহার फ्रॉम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से। आप लोग आगे बढ़ो। और कौन बोल रहे कलकत्ता पीछे है? मैं मुंबईया हूँ बट कलकत्ता को प्यार करती हूँ, कलकत्ता से टैलेंट लेके जाती हूँ बॉम्बे में। सो रियली थैंक्स। Incredible honor this is to get an award from the International Human Rights Council, especially from the founder himself. हाँ जी ग्रुप फोटो ले लीजिए। थैंक यू। आज और सिंगर को बात करने के लिए और नहीं बोल रहे, 2 लाइन अगर सुनाना है तो फटाफट सुनाओ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, बट मयूरुल्लाह जी हमें हेल्प किया है। थैंक यू। Thank you so much for your stunning performance, Shomudi. You are such a sweetheart. Thanks to Bimalda for inviting me. Thanks to everyone, each and everyone. Thank you, sir, for this award. I feel really proud being ex-freedom fighter. My grandfather was a freedom fighter of Netaji Subhash Chandra Bose, and আজকের দিন উনি বেঁচে থাকলে সত্যি ভীষণ খুশি হতেন। Thank you so much for this award. যাওয়ার আগে জাস্ট 2টো লাইন একটু গেয়ে যেতে চাই। Music off, please, for 1 second. हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। Thank you so much. আমি এবার অনুরোধ করবো, thank you so very much, Shisha. Thanks a lot for joining us here today. गेस्ट ऑफ ऑनर बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, सनी जी वेलकम कर रहे विद द ट्रॉफी कंचना। এই মঞ্চেতে সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। এই মঞ্চেতে দাঁড়িয়ে কথা বলার কতটা যোগ্য আমি সত্যিই জানি না। এমন একজন মানুষের নাম এই মঞ্চের সঙ্গে আজকে যুক্ত হয়ে গেছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। আর সারা জীবন বাঙালি তথা ভারতবর্ষী রক্তে শৌর্যে আত্মায় যার নাম, সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নামে যে অ্যাওয়ার্ড, সেই অ্যাওয়ার্ড পেয়ে এটা আমার মনে হচ্ছে আমার জীবনে এতদিনের সব থেকে বড় সম্মান। থ্যাংক ইউ সানিজি, থ্যাংক ইউ সোমু। খুব অসাধারণ একজন মেয়ে, একা খেটে এতটা ভালো একটা জায়গায় পৌঁছেছে। আজকে আমি সোমুকে দেখে আরও বেশি গর্বিত হচ্ছি, কারণ সোমু যেরকম প্রথম দিন ছিল আজও আছে, কোনো চেঞ্জ হয়নি। আমি শুধু একটাই কথা বলতে চাই যে গান্ধীজি এক সময় বলেছিলেন যে কোনো দেশের অবস্থা, প্রকৃত অবস্থা যদি বুঝতে হয় তাহলে সেই দেশের পশু পাখিদের অবস্থা দেখতে হবে। সেই দেশের পশু পাখিরা যত ভালো থাকবেন সেই দেশের প্রত্যেকটা মানুষের মানসিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থান বোঝা যাবে। তো আমি আমার তরফ থেকে চেষ্টা করি যে মানুষের পাশে তো আপনারা সকলেই দাঁড়ান, আসুন আমরা এমন একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি যেখানে কোনো রকম ক্রুয়েলটি থাকবে না। আর এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যখন পেয়েছি তখন এই কথাটা বলতে ইচ্ছা করছে যে আজকে আমাদের সমাজে একটা অবক্ষয়ের অবস্থান শুরু হয়েছে, যেখানে নিজের দেশের নামে কিছু বিতর্কের কথা বলাটা একটা স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে গেছে।
তো আমি চাই যে আমরা সবাই যে কোনো মতামত, রাজনৈতিক ভেদাভেদ সব কিছু ভুলে সবার আগে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত আমাদের নিজেদের দেশকে। কারণ দেশকে প্রায়োরিটি দেওয়াটা এটা আমাদের শুধুমাত্র কর্তব্য নয়, এটা আমাদের অস্তিত্বের লড়াই। আমরা আজকে এত ঝগড়া করছি, এত অনুষ্ঠান করছি, হাসছি, গাইছি, আনন্দ করছি শুধুমাত্র আমাদের পায়ের তলায় দেশের মাটিটা আছে বলে। তাই এই দেশের মাটি যেন আমাদের পায়ের তলায় থাকে, আর এই মাটি যেন আমরা মাথায় তুলে রাখতে পারি, এই প্রার্থনা, এই আশীর্বাদ যেন আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে চাই। আর আমি কিছুটা সকলের জন্য করতে পারি, সমাজের জন্য করতে পারি, ছোট হলেও আমার তরফ থেকে, এবং সকলকে পাশে চাই। তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আজকে খুব ইমোশনাল লাগছে, তাই জন্য হয়তো একটু বেশি কথা বলে ফেললাম। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন। বন্দে মাতারম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ কাঞ্চনা, থ্যাংক ইউ সো Thank মাচ। পাপি, Thank you so much, Shomu and Sunny Da. Sunny Da. আমি যখন চার্চে যাই ফাদার দেও বলি ফাদার দা। এটা হচ্ছে বাঙালি কালচার। আমরা দাদা বলি, আমরা দিদি বলি, আমরা রেসপেক্ট করি অন্য রকমভাবে। সেই রেসপেক্টটা আসে আমাদের নিজেদের সংস্কার থেকে, সংস্কৃতি থেকে। সংস্কার, যে সংস্কার শুধু এই জন্মে নয়, আমাদের আগের জন্মে, আমাদের পরের জন্মে এই সংস্কার ছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ব্রেভারি অ্যাওয়ার্ডস 2021 এটি পেয়ে আজকে আমি ধন্য হলাম। কারণ নেতাজি এমন একজন মানুষ যিনি দ্য মোস্ট ব্রেভেস্ট অ্যান্ড দ্য ট্র্যাজিক হিরো, আমাদের ন্যাশনাল হিরো, কিন্তু দ্য ব্রেভেস্ট ট্র্যাজিক হিরো, যার জন্ম আমরা জানতে পেরেছি, যার মৃত্যু আমরা কোনোদিন জানতে পারলাম না। আমরা তাকে নানা রকমভাবে বাঁচিয়ে রেখেছি। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের, যার 12ই জানুয়ারি জাস্ট জন্মদিন চলে গেল। সে ছিল তার গুরু। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মে, তার আদর্শে উনি বেঁচেছিলেন, এবং টোটালটা উনি বলেছিলেন, স্বামীজি বলেছিলেন, অকুত ভয় হও, বীর হও, ভয়কে পাশে রেখে। তো পাশে রেখে যিনি দাঁড় করিয়েছিলেন আমাদের ভারতবর্ষ কিন্তু স্বাধীন হয়েছিল একমাত্র নেতাজির ওই আজাদ হিন্দ ফৌজ যেটা উনি তৈরি করেছিলেন, সেইটার জন্যই কিন্তু ব্রিটিশরা পালিয়ে গেছিল। তা নইলে কিন্তু আমাদের আরও অনেক শহীদ, আমাদের বাংলা থেকে অনেক শহীদ ছিলেন, সারা ইন্ডিয়া থেকে শহীদ ছিলেন। কিন্তু আসল ক্রেডিট উই অল, ইচ অ্যান্ড অল অফ আস, আমাদের ইন্ডিয়ানসরা, উই গিভ ক্রেডিট টু নেতাজি সুভাষ বোস, যার মৃত্যুদিন আমরা জানতে পারিনি, কিন্তু প্রতিদিন আমরা তার জন্মদিন পালন করি। আমার খুব ইচ্ছে, আমার নিজের একটা ইচ্ছে আছে, আমাদের নোটে, আমাদের কারেন্সিতে, আমাদের টাকায় যদি আমরা নেতাজি সুভাষ বোসের ছবি দেখতে পাই, সেটাই হবে ইন্ডিয়ান হিসেবে, প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ান হিসেবে আমাদের একমাত্র গর্বের কারণ। সো লেটস অল প্রে ফর ইট। সোমু অ্যান্ড অল অফ আস, সানিদা আপনাকেও বলি, আমরা সবাই মিলে এটাই আমাদের একটা এজেন্ডা করি যে আমাদের ভারতবর্ষের কারেন্সির উপর নেতাজি সুভাষ বোসের ছবি এবার থেকে আমরা দেখতে চাইব। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস ব্রেভারি অ্যাওয়ার্ড। আর থ্যাংক ইউ সোমু ইজ ওয়ান্ডারফুল, কি না পারে, সত্যি কথা। চল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so very much. then renowned Kaushik Da with us today. Thank you very much. I seriously didn't know that I'm going to receive an award, because I really thought that I have to give it to somebody, the actual bravehearts who really have worked hard during the pandemic situation and everything. I don't know how much have I contributed to society or what have I done, but all I know, the people who really have worked hard and really have stood by, I mean, they have worked hard being in the front line and all. They deserve it all. They deserve everything. Thank you very much, and thank you International Human Rights Council for this award. But thank you very much. Thanks. Sorry, we are getting little late. Just give a thanks. থ্যাংক ইউ সো মাচ। এরকম একটা আন্তর্জাতিক মঞ্চে
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নামাঙ্কিত এই ব্রেভারি অ্যাওয়ার্ড পেয়ে আমি সত্যি অভিভূত। থ্যাংক ইউ সো মাচ। गेस्ट ऑफ ऑनर, टाइम कम है, मिलवाना अगर दो लाइन गाइते चाहिए, जस्ट 2 लाइन, सिंगर को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। বলো কি তোমার ক্ষতি, জীবনের অথই নদী পার হয় তোমাকে ধরে, দুর্বল মানুষ যদি সে না হয় মানুষ, দানব কখনো হয় না মানুষ, যদি দানব কখনো বা হয় মানুষ, লজ্জা কি তুমি পাবে না ও বন্ধু? মানুষ মানুষের জন্যে, জীবনের জন্যে একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু? মানুষ মানুষের জন্যে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Friends, one last award before Sir leaves. Reena ma'am wanted to felicitate Sir. Can you quickly come up? So please don't go, and of course there is a wonderful performance now, so please stay. Thank you so much for being with me, and I take your leave for the evening. Rest is to with Shomu mom. नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेटों से आए हुए मेरे मेंबर्स व पदाधिकारी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और कोलकाता से मेरे जो मेंबर्स हैं उनको सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रेवरी अवार्ड के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस अवार्ड को सबसे पहले 2020 में माननीय डॉक्टर फाउंडर शनि शाह के द्वारा मुंबई में शुरुआत की गई। आज इसका सेकंड चरण हमने 2021 में कोलकाता के अंदर संचालित किया। ये कोलकाता के लिए गर्व की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता की महान हस्ती हैं। कोलकाता की महान हस्ती के लिए ही हमारे फाउंडर डॉक्टर शनि शाह के द्वारा ये चयन किया गया कि अगला अवार्ड जो होगा वो कोलकाता के अंदर करेंगे। और जो हमारे कोलकाता के मेंबर्स व सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का काफ़ी स्टेटों में, नॉर्थ ईस्ट के आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये सब स्टेटों से हमारा जो सिस्टम चल रहा है। नशित अफरोज फोल्डर से प्लीज 2 पिक्चर्स हैं, प्लीज कैन वी हैव इट ऑन द स्क्रीन क्विकली? नशित अफरोज फोल्डर से हमारे कुछ पेजेस चलते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के नाम से। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें हमारे 4 ऑप्शन चलते हैं। 4 ऑप्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं कि हमारे बहुत सारे स्टेट प्रेसिडेंट जो स्टेट हैं उनके कुछ पेज भी नहीं बने हुए हैं, और जो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का ट्विटर और अपना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम का पेज है। इस पेज को जब आप फॉलो अप करेंगे तभी हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की सारी एक्टिविटी आप लोगों को एक तरीके से दिखेगी। अभी बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे जाइए, उसको फॉलो अप करिए और उसको लाइक और शेयर करके आगे बढ़ाइए, जिससे मानवाधिकार की जो जानकारियां हैं वो जन जन तक पहुंच जाएं। जब आप लोग इस चीज़ को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे तभी आप लोगों को इसका, ये हमारा ट्विटर का पेज है, तो ये फेसबुक का पेज है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के 4 पेज बने हुए हैं। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, जिससे हमारे जो मानवाधिकार की जो सारी आर्टिकल्स हैं, सब कुछ है, फोटोज हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो आप लोगों को सबको एक एक करके हमारे इस पर मिलता रहेगा। ट्विटर पे हमारा इंटरनेशनल @humanright_IHRC, और प्लस फेसबुक पे भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट IHRC, सब चीज़ पे हमारा पेज मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम का पेज है,
जब आप टेलीग्राम के ऐप पर जाएंगे, ऐप प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम जब डाउनलोड हो जाएगा तब अपना फ़ोन नंबर वगैरह एक्सेट्रा आप इसको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं टेलीग्राम की वो पूरी करेंगे। वो पूरी करने के बाद फिर आप इसको अपना वो करेंगे। टेलीग्राम का सारा जो भी अपडेट मिलेगा वो टेलीग्राम के आपको मिलेगा। IHRC ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के नाम से सारी चीज़ें अपडेट कर रखी हैं, जिससे हमें मानवाधिकार के प्रति ऑफिस की एक्टिविटी और बहुत सारी एक्टिविटियां जो हमारे द्वारा हर स्टेट में होती हैं वो सब कुछ आपको IHRC अपडेट पे डेली मिलेगा। डेली मिलने से ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस और जो सारी चीज़ें हैं वो आपके एक तरीके से आप उस चीज़ को जागरूक रहेंगे और आगे बढ़ने के लिए सक्षम रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे मेंबर्स और जो पदाधिकारी आए हुए हैं अलग अलग स्टेटों से, वो मैं उनको एक चीज़ की जानकारी और दूंगा कि जो हमारे पेज और टेलीग्राम का जो बना है, आप लोग टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम पे जुड़ने से आपको डेली का अपडेट जो हेड ऑफिस से अपडेट निकलता है, डेली अपडेट निकलता है हेड ऑफिस से, कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी साझा की जाएगी कि जिससे आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी एक नए रूप में जागरूक करने के लिए बढ़े। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोग सोशल मीडिया पे, मेरा मानना है कि जितने लोग बैठे हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम बहुत कम लोग चला रहे होंगे, मगर ये फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर तो ऑलरेडी सभी चला रहे होंगे। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि टेलीग्राम पे भी आप लोग आके जुड़ें, जिससे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये चारों IHRC के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। आप इन प्लेटफॉर्म पे आके जुड़ेंगे तो आपको IHRC से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो आपको अपडेटेड होंगी। सभी कुछ IHRC इस पर अपडेट करेगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी। जय हिंद। विराजमान आज के मुख्य अतिथि श्री सनी जी, आज के अवार्डीज जो अलग अलग क्षेत्रों से इस जगह में आप आए, उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष करके हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट साहब और उनके कोर टीम और जितने भी दूर दूर से, उड़ीसा से आए हुए हमारे प्रेसिडेंट, उनकी टीम, नागालैंड से आए हुए प्रेसिडेंट, उनकी टीम, गुवाहाटी से आए हुए प्रेसिडेंट, उनकी टीम, और बिहार से आए हुए प्रेसिडेंट और उनके टीम, और जितने सुनने वाले श्रोतागणों और आज उपस्थित सभी भाई बहनों, और खास करके उन टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए उन्होंने जो मेहनत किया। मैं डॉक्टर TM ओंकार, वाइस चेयरमैन, आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष करके आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल की बैनर के तरह, ताकि मिलकर हम आपस में एक साथ मानव का विकास, मानव की दर्द, मानव की चिंता को समझते हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर सनी साहब का एक विजन है, मिशन है, गोल है, गांव हो, शहरों हो और अलग अलग राज्य में, और चाहे मानव के साथ होने वाली अलग अलग प्रकार की हम देखते हैं हादसा, और उनसे निकालने के लिए उन्होंने जो आज भारत देश के अंदर और विशेष करके हम देखते हैं कलकत्ता के और जितने हमारे कार्यकर्ताओं, छोटा से लेकर बड़ों से लेकर, उन्होंने जो मेहनत किया और उनके मेहनत का रंग आज हम यहाँ देखते हैं। और उसके कारण आज हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ब्रेव अवार्ड आज यहाँ दिया जा रहा है, और उसका हम जो भी हम श्रेय जो देना चाहते हैं, और हमारे कार्यकर्ता और उनके लीडरों के कारण आज ये हो चुका। इसलिए मैं तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
विशेष करके आज एक बड़ी चर्चा का समय है कि हमारे मानव अधिकार गवर्नमेंट होने के बाद भी, आज हमारे मीडिया होने के बाद भी, फिर भी आज मानव अधिकार क्यों आवश्यक है और क्यों जरूरी है, ये हमको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आज हम संविधान के बारे में जानते हैं, भारत के कानून के बारे में जानते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमने एक मानव का रूप लेकर इस संसार में आए हैं और हमें मानव का जो हमें नियम है, मानव का जो कानून है, उसे हमें नहीं मालूम होने के कारण आज हम देखते हैं कि हमारे बीच में कई दूरी है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, और हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स के नाम पे और कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम आपस में रहते हुए, लेकिन हमारे अंदर कई दुख है, कई दर्द है, उसके लिए आपके बीच में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफ के लिए, आपके लिए खड़े हैं। और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता जो हमेशा रात और दिन आपके लिए प्रयास के लिए जो मेहनत करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष करके मेरा कहने का मतलब यह है कि मानवाधिकार जिनके सभी मानव प्राणी का हकदार है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मीडिया में देख लिया, अखबार में देख लिया तो खाली गरीबों के लिए है, अनाथों के लिए है, विधवाओं के लिए है मानवाधिकार। ऐसा नहीं है, मानव अधिकार सभी के लिए, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप मिलिट्री के अंदर हो, चाहे आप राजनीतिक में हो, अलग अलग आप क्षेत्र के अंदर मानव अधिकार सभी के लिए लागू होता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हर मानव का सेवा करना, हर मानव के साथ खड़ा होना एक मानव ही धर्म है। इसलिए प्रियो, हर एक से ये कहना चाहता हूं, मानवाधिकार हमारे जीवन के अंदर हमें आजादी देता है और हमारे शांति देता है, प्रेम देता है, हमें हक देता है। उस मानवाधिकार के लिए हमारे आदरणीय सनी शाह ने आने वाले दिनों में, जैसे कलकत्ता नहीं लेकिन भारत के हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यकर्ता और उनके लोग रात दिन लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं और करते जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और खास के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे कैसा भी तकलीफ हो, चाहे कैसी भी परेशानी हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है को इंसान को उस गुलामी से उससे आजाद करना मानव का कर्तव्य है। और मानव अधिकार एक मानव अधिकार का कार्य है कि इन क्षेत्रों के अंदर हम मिलकर एकजुट होकर तन मन से अगर कार्य करेंगे, हम विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में हम जरूर विजय पाएंगे और लोगों का दर्द को हम समझ सकेंगे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें कई हम मानव अधिकार हमें सिखाता है कि जाति के नाम पे नहीं, रंग के नाम पे नहीं, लिंग के नाम पे नहीं, भाषा के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, हमें मानवाधिकार समझाता है, सिखाता है कि जहां भी हम रहे, हम समाज को एकीकृत करें, समाज के साथ रहे, उनके दर्द को समझ सके, जान सके। और एक मानव होने के कारण हमें किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही मानव अधिकार आपको सिखाना चाहता है। इसलिए हमारे आदरणीय सनी शाह आने वाले दिनों में वो चाहते हैं कई क्षेत्रों में लोगों का हॉस्पिटल खुले, कई अनाथ आश्रम खुले और कई कॉलेजेस खुले। और कई ऐसे लोग हैं जो आज कई वो असहारा है, उनको सहयोग देने के लिए उन्होंने वो सपना, वो दर्शन देखा है। और उनके साथ जब तक हमारे प्रेसिडेंट, कार्यकर्ता और जब तक छोटे से बड़े तक हम मिलजुल कर एक साथ नहीं होंगे तो ये करना बहुत ही मुमकिन है। लेकिन हमें कहना चाहता हूं, अगर हम संकल्प लेंगे और एक साथ खड़े होंगे, मैं विश्वास करता हूं जरूर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रियो, मैं भी एक मानवाधिकार का एक प्रतिनिधि होने के कारण मेरा ये एक सपना है कि आने वाले दिनों में आप लोग मिलजुल कर इस संगठन को बढ़ाइए, इसके साथ रहिए, इसका दर्शन के साथ हम रहेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं नेशनल नसीद जी भाई हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और हम बॉम्बे से वो भी हमारे बीच में आए हैं, मुस्लिम जी आए हैं और हमें उषा बहन भी आए हैं। हमारा एक ही संकल्प है, यही चाहते हैं कि हम मिलजुल कर
काम करे, कार्य करे। मानवाधिकार कोई एक इंसान के लिए नहीं है, सभी मानव का है, सबका हक है। चाहे आप कोई भी क्षेत्र में आपका टैलेंट है, गिफ्ट है, लेकिन एक मानव होने के कारण हम यहाँ जाने से पहले ये सोचे विचारे कि एक मानव को भला करना, उसको उठाना हम सबका कर्तव्य है। और यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा सनी साहब का जो सपने हैं, और कई जगह वो जमीन लेना चाहते हैं, कई जगह वो इन कई चीजों को बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कई मिलिट्री ट्रेनिंग जो हम लोग हैं उनको देना चाहते हैं, और कई उनको चाहते कंपनी खोलना चाहते हैं, जिससे मानव को किस प्रकार हेल्प कर सके, सहायता कर सके। और ये उनका क्षेत्र खाली बॉम्बे नहीं है, गुजरात नहीं है, कलकत्ता नहीं है, लेकिन उनका कार्य है कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर, कलकत्ता से लेकर गुजरात के हर मानव, हर को उनको सहयोग करे, सहायता करे। उन सपनों के साथ उन्होंने ये दर्शन देखा है, इसलिए आपके बीच में आकर हम आपको उत्तेजित करना चाहते हैं और हिम्मत देना चाहते हैं कि एकजुट होकर एक साथ इस सपने को पूरा करें, और उसके लिए आपका सहयोग, आपका सहायता हमें चाहिए। जय हिंद, जय भारत। I do always believe that this is a teamwork. Without my team support, nothing possible. So, award. Then आप लोग भी 6 खूबसूरत मॉडल जिन्होंने पूरी अवार्ड संभाला है, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, बट उनको भी तारीफ करना जरूरी है। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जानते हैं, सबको सम्मान देना। ट्रॉफी गुलो We have on stage here with us Poorami Ghosh and Shobha Mitra. This is an incredible opportunity which we all got to be a part of, and I would really like to thank all of the entire International Human Rights Council, and along with that I would like to thank Dr. Sunny Shah, the Chairman, Director, Founder and Member, for taking such an amazing initiative to take it forward from here today. Not only that, along with that I would also like to say this is such a great initiative that they came up with, and being a part of this initiative makes me really feel good. I would like to thank one and all who are present out here. Thank you so very much for giving me this opportunity to host this show today. Thank you so very much for everything that you have done for yourself, for the community, for the animals who can't talk really. Thank you so very much for being a part of it. We are about to end our show today, and hoping 2021 will be better, will be the sunrise of 2020. So, on that note, this is Diya Das signing off. And once again, I would like to thank International Human Rights Council and Mr. Shah for such an initiative. Thank you so very much, everyone.